ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। अब देखो, हमने अभी तक जो चीज़ें देखी, मतलब आई टी आर रोज़ और आई टी आर आइटम्स फंक्शन लास्ट क्लास में देखा था हमने। यहाँ पर इन्होंने एक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दो एग्जाम्पल्स के साथ जो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। ये दो एग्जाम्पल्स हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये दो एग्जाम्पल्स है क्या। वी आर प्रोवाइडेड विथ वन डी एफ नेम्ड डेटा फ्रेम. Now, what they have told us is you have to apply ITER rows and ITER items function in such a way that in example number 5 they want you to print one row at a time, and in example number 6 they want you to print one column at a time. Now, definitely, whenever you want to print one row at a time, so it is very clear that we will be using ITR rows function. And whenever it is told that we need to use one column at a time, so columns पे अगर वर्क करना है तो columns पे वर्क करने के लिए हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है जिसको बोलते हैं ITER फंक्शंस. ये तो हुई पहली बात. मतलब हमको क्वेश्चन देखकर इतना तो पता चल जाए कम से कम कि हमें करना क्या है. ठीक है. अब ये जो डीएफ डेटा फ्रेम है, अब इसको बनाने का तरीका, अब उस डेटा फ्रेम को बनाने के लिए हम किसी भी टाइप लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, हम डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं, हम दो सीरीज़ बना सकते हैं और दोनों सीरीज़ को मर्ज करके ये डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर बना सकते हैं. सो वी हैव मैनी वेज यूजिंग विच वी कैन क्रिएट द डेटा फ्रेम. तो यहाँ पर देखो, ये इन्होंने इस वे में डेटा फ्रेम क्रिएट किया. नाउ द वे दैट दे हैव यूज टू क्रिएट द डेटा फ्रेम इज डिक्शनरी. Alright. Now, how they have used dictionary? So, dictionary will always be used in curly brackets in the key and value pairs. So, you can find it over here as well. इन्होंने यहाँ पर देखो की वैल्यू पेयर में बनाया. Now, what will be the keys? Always remember that the keys that we will be providing will be the column names. Alright. Now, as we know that the column names will be serving as a key, so over here in this program, in this data frame, which are the columns? So the columns are marks and name. Now, for sure, at the place of keys, we will be giving name and marks. So you can see it from here. Name and marks they have provided here as key, and what will be the values? Values will be the remaining thing. अब remaining thing is what? For name column the remaining thing is राम, पैम और सैम. ठीक है. अब राम, पैम और सैम जो है, now you have to write that in the values. Now when you have to write that in the values, so you will write it in this way. Same goes for marks. Marks are numerics, so numerics won't be put inside the quotations. तो उनको हमने देखो quotations में नहीं लिखा. Now we are done with this much. Now if I will tell you that इतना जो हमने किया, this will make only this much of data frame. अभी भी आप देख सकते हो, we are left with this. अभी भी हमारे data frame में this is not included for now. This one. Now we want to include this as well. So at the time of using pd.dataframe, what we will be doing is, at the time of printing pd.dataframe, we will be writing the name of the dictionary, which is dict, and then we will be putting comma and writing the names of the indexes in a list which are separated by a comma. ठीक है. तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंडेक्सेस भी प्रोवाइड कर दिए. नाउ यू कैन सी दैट दिस particular data frame has been created. All right. Now you can see that this particular data frame has been created. Just a minute. Pen. हाँ. अब data frame बन गया. Now let us see the question which they want us. क्या output चाहिए? One row at a time. One row at a time definitely means we will be using ITER rows function. Now see, they have used ITER rows function. In the previous class, we have already seen ITER rows function combines with two things. The first thing is row index, and the second thing is row series. Now, instead of writing this long things, I will be writing I, j this time. ठीक है. इतना बड़ा लिखने की बजाय मैंने रो इंडेक्स को I बोल दिया, रो सीरीज को J बोल दिया.
नाउ लेट अस सी इन द प्रोग्राम। अब यहां पर क्या हुआ, मैंने लिखा फॉर, डेफिनेटली ITER लगाना है, मीन्स इटरेशन लगाना है, इटरेशन मतलब वैल्यूज को रिपीट करना है। फॉर रिपीटिंग द वैल्यूज वी विल बी यूजिंग फॉर। फॉर इज व्हाट, फॉर इज अ लूप, लूप मतलब रिपीटिंग, वी वांट टू पुट समथिंग ऑन रिपीट, तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा। सो हमने लगाया फॉर I, J in which data frame we are working, so we are working in the data frame df.itr rows function. So for I, j in df.itr rows function मतलब ये हुआ कि हम रो वाइज डेटा फ्रेम के डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। क्लियर। और मैंने अल्टीमेटली कर दिया प्रिंट जे, एज सिंपल एज दैट। सिर्फ वहां पर लिखा प्रिंट जे, और अगला भी इसके नीचे प्रिंट हो जाएगा, ये लूप चलेगा तो। बट इंस्टेड मैंने क्या किया, एक लाइन भी ड्रॉ कर दी कि पहला आउटपुट आए 1 लाइन, दूसरा आउटपुट आए 1 लाइन, और तीसरा आउटपुट। नाउ आउटपुट विल बी प्रिंटेड दिस वे। इफ आई वुड हैव नॉट रिटन दिस लाइन, जस्ट इमेजिन इफ आई वुड हैव नॉट रिटन दिस लाइन, सो दीज लाइन्स वुड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम हियर एंड द आउटपुट दैट वी हैव गॉट विल नाउ लुक लाइक दिस। पर हमने वो लाइन लगाई है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर भी वो लाइन्स आएंगी। क्लियर। अब सेम प्रोग्राम विथ चेंज्ड क्वेश्चन, one column at a time. One column at a time, everything will remain the same. The only thing that will change is this. For I, j in df.iter items, अब देख रहे हो आप, ITER items पे आ गए हम, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब हमें कॉलम्स के फॉर्म में वैल्यूज चाहिए, तो हम इस तरीके से प्रिंट कर देंगे। अब दोनों के आउटपुट की अगर मैं बात करूँ, तो हम इसका एक बार आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट ये क्या जनरेट कर रहा है। देखो, अगर मैं बात करूं पहले वाले की, तो पहले वाले में हमें रोज के फॉर्म में आउटपुट चाहिए था। तो हमारी रोज में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारी रोज में मिलेंगी हमें ये चीज़ें, 70 राम, 95 पैम, 80 सैम, ये चीज़ें हमें मिलेंगी, और यही हमारा आउटपुट भी होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो भी कुछ इसी तरीके से आया है, 70 राम, 95 पैम, 80 सैम। ठीक, ये इस तरीके से आउटपुट आया। तीसरी जो लाइन यहाँ पर प्रिंट हुई है वो तो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर प्रिंट करता है, तो वो प्रिंट हुई है। सेम केस विथ दिस वन, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पर प्रिंट होगा 70, 95, 60, 80, 70, 95, 80, ये पहली लाइन हमारी प्रिंट होगी, और दूसरा प्रिंट होगा रैम, पैम और सैम। तो ये आउटपुट हमें देखने को मिलेंगे। इसमें अलॉन्ग विद दिस हमें रोल नंबर भी देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से, तो देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आया है। तो आप आउटपुट देख सकते हो यहाँ पर, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, 70, 95, 80, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, राम, पैम, सैम। तो ये इधर आउटपुट आया जब हमने कॉलम वाइज इसको प्रिंट किया। तो इस तरीके से ये आउटपुट्स जनरेट किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है, वो है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने बोल दिया कि हमें सिर्फ मार्क्स कॉलम हमें प्रिंट करना है, बाकी कॉलम्स हमें प्रिंट नहीं करना है, हमें सिर्फ मार्क्स कॉलम प्रिंट करना है। ठीक है, तो जो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम चला था, ये यहाँ तक तो हमारे सारे प्रोग्राम सेम चलेंगे। प्रिंट क्या करना है बस वो चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या प्रिंट करना है वो देखो। पहली बात तो समझो कि ये कहाँ पर है, ये जो हमें प्रिंट करना है मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स जो हमें प्रिंट करना है वो क्या है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज़ हैं जो हमें प्रिंट करना है। और यहाँ पर इस प्रोग्राम के केस में हमने I, J ना लेते हुए क्या लिखा है, R, रो। वैल्यूज़ कहाँ पर होती है, इस पार्ट पे, मतलब रो के अंदर वैल्यूज़ होती हैं। तो हमें प्रिंट करते टाइम लिखना पड़ेगा, सिंपली जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते टाइम हमें लिखना पड़ेगा उस रो का नाम, मतलब हमने यहाँ पर क्या नाम दिया, रो ही दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया रो। और रो में से क्या आउटपुट चाहिए हमें, तो हमें चाहिए मार्क्स, तो स्क्वायर ब्रैकेट में उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम लिख देंगे जिसका आउटपुट हमको चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलेगा, अब वो आउटपुट हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ मिलेंगी जो उस पर्टिकुलर कॉलम में होंगी। तो हमें आउटपुट मिलेगा 70, 95, 80।
मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पर हम जब प्रिंट कर रहे थे तो हमें यहाँ पर सीरीज प्रिंट करनी थी। इंडेक्स का नाम अगर प्रिंट करना होता तो यहाँ पर हम रो लिखने की बजाय यहाँ पर हम आर लिखते, पर हमें इंडेक्स नहीं प्रिंट करना है, हमें सीरीज प्रिंट करना है, मतलब वैल्यूज प्रिंट करना है, और वैल्यूज होती हैं सेकंड में, आर कॉमा रो, तो सेकंड पार्ट जो होता है फॉर्म में उसमें होती हैं वैल्यूज, तो इसलिए यहाँ पर हमने रो लिखा है। और रो में कौन सी फील्ड प्रिंट करनी है, अगर यहाँ पर मैं रो में लिख देता नेम तो लोगों के सिर्फ नेम प्रिंट होने लगते, मैंने लिखा मार्क्स तो क्या होगा, लोगों के सिर्फ मार्क्स प्रिंट होंगे। तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को भी ITER रोज फंक्शन का यूज़ करके इजीली क्या कह सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस इज पॉसिबल। ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब आता है आज का टॉपिक, बाइनरी ऑपरेशंस इन डेटा फ्रेम। बाइनरी मतलब दो, ठीक है, बाइनरी का मतलब हुआ दो। नाउ टू मीन्स व्हाट, वी विल बी हैविंग टू डेटा फ्रेम्स नाउ, ठीक है। बाइनरी है मतलब बाइनरी का मतलब हुआ दो डेटा फ्रेम्स हमें लगेंगे। अब इन दो डेटा फ्रेम्स पे अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो बोलेंगे कि हमने बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन यहां पर अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखो, बाइनरी ऑपरेशंस मीन ऑपरेशंस रिक्वायरिंग टू वैल्यूज टू परफॉर्म एंड दीज आर पिक्ड एलिमेंट वाइज, ठीक है। अब हमें क्या हो रहा है यहाँ पर, अब बाइनरी ऑपरेशंस समझना है तो हमें यहाँ पर दो डेटा फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो बाइनरी है तो दो तो चाहिए। अब चाहे मैं इन दोनों के बीच में एडिशन ऑपरेटर लगा दूँ, जस्ट अ मिनट, चाहे अब इन दोनों के बीच में मैं एडिशन ऑपरेटर लगा दूँ, माइनस लगा दूँ, इनटू लगा दूँ, डिवाइड लगा दूँ, ये हो गए कुछ ऑपरेटर्स। बट ये ऑपरेशंस कब परफॉर्म होंगे, जब मेरे पास दो डेटा फ्रेम्स होंगे। नाउ ओनली हैविंग टू डेटा फ्रेम्स इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट, ठीक है। अब ये जो दो डेटा फ्रेम्स हमारे पास होंगे उसमें भी कंडीशन है। ये जो दो डेटा फ्रेम्स हैं, ये दोनों डेटा फ्रेम्स का जो कॉलम नेम है वो सेम होना चाहिए, और इनका जो इंडेक्स है वो भी सेम होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन जो हमें ध्यान में रखना है। मतलब क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन टू वैल्यूज एंड बोथ ऑफ दोज वैल्यूज शुड हैव द सेम कॉलम नेम एज वेल एज सेम इंडेक्सेस, ठीक है। अब जब ये सब चीज़ें सेम होंगी, मतलब सेम कॉलम नेम होगा, सेम इंडेक्स होगा, तभी वो एलिमेंट वाइज चीज़ों को पिक कर पाएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा अगर मैं इसको आपको यहाँ पर बना के बताऊँ तो देखो, जैसे कि मेरे पास एक डेटा फ्रेम है जिसमें 1 2 A B और यहाँ पर 10 20 30 40 ये वैल्यूज़ है। तो अगला जो मेरा डेटा फ्रेम होगा उसमें भी 1 2 A B, अब 5 4 3 2, ये मेरे दो डेटा फ्रेम्स हैं। इन दोनों डेटा फ्रेम्स पर बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। क्यों परफॉर्म हो सकते हैं, इसीलिए परफॉर्म हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों के कॉलम नेम्स सेम है, इन दोनों के इंडेक्सेस सेम है। जब इनके कॉलम नेम और इंडेक्सेस सेम होंगे तभी इन दोनों पर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें एक जैसी है तो अब एलिमेंट वाइज हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे 1 के A को, जैसे कि 1 का जो A है जो कि है ये 10, इसको मुझे ऐड करना है 1 के A पे दूसरे एलिमेंट के, तो ये 10 + 5 इजीली 15 आंसर आ जाएगा। बट अगर यहाँ पर इंडेक्सेस के नाम चेंज होते या कॉलम्स के नाम चेंज होते तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म होना पॉसिबल नहीं था, यहाँ पर फिर बाइनरी ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म हो सकते थे। तो जब बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं तो बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कंडीशन ही ये होती है कि दोनों डेटा फ्रेम्स का कॉलम नेम और रो इंडेक्सेस सेम होना चाहिए। अगर होगा तो ठीक है, पर क्या अगर नहीं होगा तो क्या होगा, एक अगर नहीं होगा सो व्हाट विल इट प्रिंट, सो इट विल प्रिंट द आउटपुट टू बी नैन।
वो आउटपुट में नैन प्रिंट कर देगा, मीन्स नॉट अ नंबर। मतलब आपके जब वो इंडेक्सेस और कॉलम नेम्स मैच नहीं होंगे तो वो वैल्यू कहाँ पुट करना है, क्या पुट करना है, इट इज़ नॉट क्लियर। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा नैन। नैन मतलब इट इज़ नॉट अ नंबर, कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कोई नंबर आ नहीं पाया। अब अगर इनको हम कुछ प्रैक्टिकली यहाँ पर जो बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल में इन्होंने समझाने के लिए 4 डेटा फ्रेम्स हमको दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन 4 डेटा फ्रेम्स में खास बात सबसे पहले तो मैच करते हैं अपन कि क्या इनके कॉलम नेम सेम है। तो देखो पहले में ए बी सी, दूसरे में ए बी सी, तीसरे में ए बी सी, चौथे में ए बी। चलो ठीक है, कॉलम नेम्स तो सेम है। चलो चौथे में नहीं है क्योंकि सी नहीं है, बट फिर भी कॉलम नेम्स तो है। अब अगर मैं रो इंडेक्सेस की बात करूँ 012 012 01 012, तो यहाँ पर भी चलो ठीक है कि इंडेक्सेस भी ऑलमोस्ट सेम है, एक जगह पर नंबर ऑफ वैल्यूज़ कम है, पर ठीक है इंडेक्सेस सेम है। अब अगर मुझे यहाँ पर एडिशन ऑपरेटर लगाना है, मुझे इस पे अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, फॉर एग्जांपल मुझे एडिशन ऑपरेटर लगाना है, तो एडिशन ऑपरेटर लगाने के मेरे पास 3 तरीके हैं। या तो सिंपली मैं दोनों डेटा फ्रेम्स के बीच में प्लस का साइन यूज़ कर लूँ, या तो मैं ऐड फंक्शन का यूज़ करूँ, या तो मैं आर ऐड फंक्शन का यूज़ करूँ, ठीक है। 3 तरीके से हम ऐड कर सकते हैं 2 डेटा फ्रेम्स को। कौन कौन से? या तो ऐड फंक्शन लगा दें, या तो आर ऐड फंक्शन लगा दें, या तो प्लस फंक्शन लगा दें, ठीक है। हम इन तीनों फंक्शंस का यूज़ करके एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला पार्ट आप देखना, ये वाला पार्ट हम देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर हमने लगाया आर ऐड फंक्शन, ये यहाँ पर दिख रहा है df1 प्लस df2। सिंपली df1 प्लस df2 करेंगे, एलिमेंट वाइज एडिशन हो जाएगा। a0 इधर के a0 से ऐड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनके कॉलम नेम और इंडेक्सेस सेम है, इसीलिए एलिमेंट वाइज एडिशन पॉसिबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एडिशन हो गया। सेम विल गो फॉर दिस ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन कैसे लगाया? df1 डॉट ऐड फंक्शन लिखा, और df1 डॉट ऐड फंक्शन के ब्रैकेट में जो आर्ग्यूमेंट हमने पास किया यहाँ पर, वो आर्ग्यूमेंट पास किया df3, मतलब जो अगला डेटा फ्रेम हमें उसमें जोड़ना है वो, तो वो हमने यहाँ पर पास किया। तो जब आप देखोगे कि जब इसमें df3 ऐड किया तो df3 में तो सिर्फ 0 और 1 थे, है ना। df3 में अगर हम देखें तो सिर्फ 0 और 1 थे, और यहाँ पर df1 में क्या है? 0 1 2 है, मतलब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ कम है। अब जब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ कम है, अच्छा मैं आगे वाले पे आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो df1 को df2 में ऐड किया है, तो df1 df2 ऐड हो जाएगा। df1 डॉट आर ऐड फंक्शन, आर ऐड फंक्शन भी लगाओगे तो आर ऐड फंक्शन भी लग जाएगा और एडिशन हो जाएगा। तो जब यहाँ पर सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ इंडेक्सेस होते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ ईजी। आगे बढ़ता है df1 प्लस df3। df1 में ABC और 0 1 2 है, df3 में ABC तो है पर 0 1 2 नहीं है, 0 और 1 है। तो जब 0 और 1 है तो जो सेकेंड वाला 0 1 2 जो सेकेंड इंडेक्स बचेगा, उस सेकेंड इंडेक्स को देखो, यहाँ पर जो वैल्यू अब आई है, यहाँ पर अब वो वैल्यू उसने नैन प्रिंट कर दी। नैन इसलिए प्रिंट कर दी क्योंकि जब उसने एडिशन करने की कोशिश करी, जब बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करी, तो उसे एक ही जगह पर ये मिला, दूसरे डेटा फ्रेम में ये नहीं मिला। जब दूसरे डेटा फ्रेम में ये नहीं मिला तो डेफिनेटली वो यहाँ पर इसको ऐड कैसे करेगा जब उसके पास ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो सो यहाँ पर एलिमेंट वाइज एडिशन नहीं होगा और वैल्यूज आएंगी नैन। सेम विल गो इन दिस केस, ऐड फंक्शन, आर ऐड फंक्शन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो वही हुआ है कि यहाँ पर उन्होंने वो वैल्यूज़ को ऐड फंक्शन और आर ऐड फंक्शन लगाया है, तो नैन वहाँ पर उसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से ये एडिशन वर्क करता है। और भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब उसमें क्या हो गया? अब उसमें यहाँ पर इन्होंने df1 को, जो ये हमारा df1 है,
उस df1 को ऐड किया df4 के साथ। अब df4 में a b c नहीं है। अब जब df4 में c नहीं है तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो c वाला कॉलम है वो यहाँ पर अब एलिमेंट वाइज ऐड नहीं हो पाया और यहाँ पर अब वैल्यूज नैन आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से एडिशन किया जा सकता है अगर दो डेटा फ्रेम्स आइडेंटिकल हो तो। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो नहीं हो सकता। उसके बाद हाँ, उसके बाद इन्होंने दूसरा तरीका बताया है। दूसरा है सब्ट्रैक्ट के लिए। सब्ट्रैक्ट के लिए आप माइनस साइन लगा सकते हो, माइनस साइन के बाद सब फंक्शन लगा सकते हो या आर सब फंक्शन लगा सकते हो जो आपने एडिशन में लगाए। प्रोसेस विल रिमेन द सेम। सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस में भी आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में भी आंसर एक्सेप्टेड है। जहां पर कॉलम्स नहीं मैच करेंगे, जहां पे कॉलम्स बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, वहां पर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली वहां पर आंसर क्या आ रहा है, नैन। ठीक है, जहां पर मैच नहीं करेगा वहां पे नैन, अदरवाइज एडिशन या सब्सट्रैक्शन या जो भी हम करेंगे वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये बाइनरी ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म होते हैं। तो हम किसी डेटा फ्रेम्स पर, दो डेटा फ्रेम्स पर बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी इन्होंने यूज़ कर रखा है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आर मल नाम का कोई मल्टीप्लिकेशन फंक्शन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ आप सिंपली दो मल्टीप्लिकेशन फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। एक तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है मल फंक्शन। तो ये दो का यूज़ करके हम मल्टीप्लिकेशन दो अलग अलग डेटा फ्रेम्स में ईजिली कर सकते हैं। सेम गोस फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए भी आपके पास या तो ये वाला है या तो फिर आप लगा सकते हो div फंक्शन। अगर आप ऐसा करोगे तो भी बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं वो बाइनरी ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। आगे देखते हैं और क्या है। चारों तरीके से देख लिया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये था। आगे देखते हैं, एक आध पेज अगर और होगा आज की क्लास में तो। हाँ, एक और पेज है। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10। ये तीनों एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो देखो, पहला एग्जाम्पल दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल पॉइंट्स अर्नड बाय बोथ द टीम्स इन ईच राउंड। हर एक राउंड में दोनों टीम्स ने कितने कितने पॉइंट्स पाए वो हमें लिखना है। तो हमें पहले तो देखना पड़ेगा डेटा फ्रेम दिख कैसा रहा है। ठीक है, तो पहले अपन वो देखते हैं। तो डेटा फ्रेम जो है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, df1 df2, ये रहे हमारा डेटा फ्रेम। 4 राउंड हुए हैं, 1 2 3 4। दो टीम्स हैं P1 P2। P1 ने पहले राउंड में 700 पॉइंट, टीम 1 ने क्या है ये, P1 और P2। अच्छा ठीक है, पॉइंट्स हैं, .1 .2, .1 .2, ये है पूरा टीम A, ये है पूरा टीम B। टीम ए और टीम बी के 4 राउंड्स के 2 अलग अलग पॉइंट्स के कैलकुलेशन निकले हुए हैं। सीधी सी बात है, उन्होंने बोला है हर राउंड में, मतलब राउंड 1 में P1 ने कितने पॉइंट्स पाए वो हमें निकालना है, मतलब ऐड करना पड़ेगा। अब P1 ने अगर मैं बोलूं राउंड 1 में कितने पॉइंट्स लाए तो 1100 प्लस 700 तो 1800। ठीक है, P2 ने फर्स्ट राउंड में कितने पॉइंट्स लाए तो 1890। ठीक है, ठीक, तो P2 ने लाया 1890। सेम विल गो फॉर द रिमेनिंग वंस। तो रिमेनिंग वंस भी यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे और जो भी बचे हुए होंगे वो। तो ये आउटपुट वो हमसे चाह रहा है कि हम क्या करें, हम दोनों डेटा फ्रेम्स को ऐड कर यहाँ पर प्रिंट कर दें। ठीक है, जब दोनों डेटा फ्रेम्स को ऐड करके यहाँ पर प्रिंट करना है तो यहाँ पर पहले तो हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर लें। तो वही की वैल्यू पेयर यूज़ किया है। की वैल्यू पेयर में भी हम सिंपली की वैल्यू पेयर का यूज़ करके भी इंडेक्सेस की वैल्यू डाल सकते हैं, नहीं तो pd.dataFrame फंक्शन लगाते टाइम पर भी हम इंडेक्सेस की वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये हमने सबसे पहले तो बनाया डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम बनाने का तरीका आपका, आप जो चाहो सीरीज़ यूज़ करके भी बना सकते हो और
डिक्शनरी का यूज़ करके भी बना सकते हो। डिक्शनरी ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आपको डिक्शनरी इस तरीके से यूज़ नहीं करनी है तो आप दूसरे तरीके से भी डिक्शनरी यूज़ कर सकते हो। अब सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इन दोनों को प्रिंट कर दिया, तो ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो गए। अब हमने लिखा टीम 1 का परफॉर्मेंस, तो df1 को प्रिंट कर दिया। और अच्छा, ये तो pd डॉट डेटा फ्रेम को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पर प्रिंट किया है टीम 2 का परफॉर्मेंस, तो df2 को प्रिंट कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ टीम 1 का परफॉर्मेंस, टीम 2 का परफॉर्मेंस, ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। पॉइंट्स अर्नड बाय बोथ द टीम्स, तो अल्टीमेटली जो इंपॉर्टेंट लाइन थी वो थी ये, प्रिंट df1 प्लस df2। ऐसा करने से क्या हुआ, इन दोनों का एडिशन हुआ, और एडिशन होने के बाद यहाँ पर हमें जो आउटपुट देखने को मिला वो मिला कुछ ये, तो ये आउटपुट हमें मिल जाएगा। ये हुई एडिशन की बात। अब दूसरा जो एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 9, कंसीडर द पॉइंट्स अर्नड बाय 2 टीम्स, डिस्प्ले हाउ मच डिफरेंस टीम 2 हैज़ विथ टीम 1। टीम 2 का डिफरेंस निकालना है टीम 1 से, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टीम 2 का डिफरेंस टीम 1 से, तो df2 माइनस df1 करना है, या तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं df1 डॉट सब df2, तो df2 से df1 माइनस होएगा। सिमिलरली r सब लगा दोगे तो भी df2 से df1 माइनस होगा। तो आप इनमें से जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, और माइनस लगा के तो आप कर ही सकते हो ना, माइनस भी लगा सकते हो और सब और r सब भी लगा सकते हो, 3 तरीके से इसको कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर भी आप देखोगे अगर इस प्रोग्राम को, तो इन्होंने सिंपली यहाँ पर ये ऑपरेटर यूज़ करा होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, तो यहाँ पर देखो इन्होंने ये ऑपरेशन यहाँ पर लगा दिया, df1 डॉट आर सब df2। हम ऐसा भी लिख सकते हैं df2 डॉट सब, अच्छा df2 डॉट सब में उल्टा हो जाएगा, df2 डॉट सब में df2 से सब्ट्रैक्ट करो df1, तो df2 डॉट सब मतलब क्या होगा कि हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट लिखने, माइनस का साइन लगाने की बजाय सब्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, तो df2 डॉट सब df1 लिखेंगे तो भी df2 माइनस df1 होगा, और df1 डॉट आर सब लिखेंगे मतलब राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, मतलब राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा। आर ऐड में तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कहीं भी आ जाए, राइट साइड से भी ऐड करोगे लेफ्ट साइड से भी ऐड करोगे तो वैल्यू सेम रहेगी, बट सब्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आर सब मतलब राइट सब, तो राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करेगा। जब आप आर सब लगाओगे तो df2 पहले लिखना, आर सब के ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और सब लिखोगे तो वो लेफ्ट साइड से ही सब्ट्रैक्ट करेगा, और जब लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर df2 पहले लिखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, गिवन द डेटा फ्रेम्स 2 प्लेयर इन 4 राउंड्स, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पर बोला एवरेज आपको निकालना है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज करने के लिए पहले को दूसरे से जोड़ देते हैं, इसके आउटपुट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखोगे इन्होंने df1 और df2 को ऐड किया है और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, और अल्टीमेटली जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पर ये इस तरीके से एवरेज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो यहाँ पर हमें बताई गई थी। मैं इसके जो वीडियोज़ हैं वो भी मैंने बना लिए, वो भी आपको मैं सेंड कर दूंगा, और ये मीटिंग का रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा ग्रुप पर। कुछ डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लो अभी। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? है पवन, है कुछ दिक्कत होगी? दिख रही है स्क्रीन तो। चलो ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। मैं ये जूम मीटिंग और शॉर्ट वीडियोस भेज रहा हूँ, आप लोग उनको भी एक बार देख लेना, तो क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू स्टूडेंट्स।